Hello dear students. In the previous video we had studied about Bernoulli's theorem and we had just seen the statement. Today in this video we will learn about how to derive Bernoulli's principle and its application. So for deriving Bernoulli's equation, first of all we must be aware of the statement of Bernoulli's theorem. If an ideal fluid is flowing in a streamlined flow, then the total energy, that is sum of the pressure energy, kinetic energy, potential energy per unit volume of a liquid remains constant at every cross section of the tube. So it will be the pressure energy per unit volume, this is the kinetic energy per unit volume, and this is the potential energy per unit volume. This will remain constant, which we had seen in the previous video. Here we have to take two assumptions: that the fluid is incompressible, means the density at both the end must remain same. मतलब इस वाले end पर density और इस वाले end पर density, दोनों ends पर density आपकी क्या रहने वाली है, same रहने वाली है. And the second is, it is no viscous force is acting on the fluid. So what will be the work done on the fluid? So work done will be F into dx होता है बेटा, तो F की जगह पर हम लोग क्या लिख पाएंगे, प्रेशर इंटू एरिया इंटू dx1, दिस विल बी dx2. So dw will be equal to p1 minus p2 into dv. We can write it as in this way also, that is p1 v1 is minus p2 v2 भी हम लोग इसको लिख सकते थे. We know that the work done on the fluid was due to conservation of gravitational forces and the change in kinetic energy. So the change in kinetic energy is given by half m2 v2 square minus half m1 v1 square, and in terms of density we can write it in this way. What will be the change in potential energy? Here we have seen that here the height is y1 and here the height is y2. So y2 minus y1, and if I'll write it in terms of density, it will be this expression. So therefore the energy equation is given by work done will be equal to जो भी हमने work किया, that is converted into kinetic energy and potential energy. So this is the expression of work done, this is the expression of kinetic energy, and this is the expression of potential energy. So when we'll rearrange it like dv dv dv, from all three terms will get cancelled out, and after rearranging we'll get p1 plus half rho v1 square plus rho g y1 is equal to p2 plus half rho v2 square plus rho g y2. So this is the Bernoulli equation, which shows that the pressure energy, kinetic energy, and potential energy per unit volume at this cross section and at this cross section, it remains constant. So this is the derivation of your Bernoulli's equation. Now we have to see the application, and in the application we have to see first of all the Torricelli law of efflux. As per the Torricelli law for Newtonian fluid मतलब non-viscous fluid, the density of the efflux of the fluid passing through a sharp edge hole at the bottom of the tank filled with the fluid to a depth of h is the same as the speed that a body would acquire in a freely falling condition when falling from a height h. मतलब अगर मान लीजिए किसी भी बॉडी को हम हाइट h से अगर ड्रॉप कराएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है उस पर्टिकुलर लोकेशन पर जाकर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, रूट अंडर 2gh. So here what we have taken is, we have considered a closed tank, and in this closed tank we are having a small opening, and this opening is called as orifice. और जो यहाँ से फ्लूइड जो निकल रहा है बाहर, इसको हम बोलते हैं इफ्लक्स, and we need to find the velocity of efflux. As the tank is closed, so the pressure will be different, because now the pressure which is acting is not the atmospheric pressure, so we had considered it as P. And as this opening is directly associated with the atmospheric pressure, so here the pressure will be PA. Now, from the equation of continuity, we can write A1 V1 is equal to A2 V2. So V2 will be equal to A1 V1 by A2 V2. If the cross-sectional area of the tank is A2 is much larger than that of the whole, so A2 is far greater than A1, then we may take the fluid to be approximately at rest. मतलब हम V2 की velocity को कैसे मान सकते हैं, जीरो मान सकते हैं, क्योंकि इसका जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है. तो हम v2 को, मतलब यहाँ से जो भी मेरा फ्लूइड निकल रहा होगा उसकी वेलोसिटी को मैं कितना अज्यूम कर लूँगा बेटा, जीरो अज्यूम करूँगा. नाउ बाय अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन एट पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 विल गेट पी ए प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर प्लस रो जी वाई वन. मतलब ये हमने वन पॉइंट लिया है एंड दिस इज अवर सेकेंड पॉइंट, राइट. So this will be PV plus half rho V2 square plus rho G Y1.
सो इन दोनों के बीच में जो हाइट का डिफरेंस है, उस डिफरेंस को मतलब y2 माइनस y1 जो हमने लिया है, दिस इज बेसिकली इक्वल टू h. So h is the height, that is the difference in height, that is y1 minus y2, sorry, here y2 minus y1. So here v1 will be equal to root under 2 upon rho p minus pa plus rho g h. This is the case when the tank is closed. When the tank is open, when the tank is open, in that case what we'll find that the pressure which is P2, इसको हमने P लिया हुआ है, इसको हम PATM कंसिडर करेंगे, क्योंकि जब ये टैंक ओपन होगा तो यहाँ पर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा दैट विल बी इक्वल टू PATM. So PATM and this is also PATM. So both will get cancelled out and we'll get V is equal to root under 2GH, and this is basically the Torricelli law of efflux. Torricelli's law of efflux. तो एक बहुत बड़ा क्रॉस सेक्शन था, उस क्रॉस सेक्शन से फ्लूइड मेरा फ्लो होता हुआ कहाँ को जा रहा है, ये इस वाले क्रॉस सेक्शन पे जा रहा है. तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर हम क्या चीज़ अप्लाई कर सकते थे, बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई कर सकते थे. ये जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा होने की वजह से यहाँ पर अगर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इसके कंपैरेटिव, यहाँ से जो फ्लूइड मेरा फ्लो हो रहा होगा इसके कंपैरेटिव इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा कम होगी. तो वी हैड कंसिडर्ड एट V2 as 0 and we had applied the Bernoulli's equation at the particular location, and we get the velocity as V is equal to root under 2GH for the open tank, and for the velocity when the tank is closed, in that case it will be root under 2 upon rho P minus PATM plus rho GH. This will be the expression. So this is Torricelli law of efflux. Next is your venturimeter. Venturimeter is basically a device which is used to measure the flow of incompressible fluid. मतलब ये rate of flow determine करने के लिए होता है. It consists of a tube with broad diameter having a larger cross section area, but there is a small constraint in the middle. मतलब बीच में इसका एरिया जो होगा वो कम होगा, मतलब इसी तरीके का दिख रहा होता है आपको वेंचुरीमीटर. It is attached to a U-tube manometer. Here we are having a U-tube manometer. मतलब ये अगर मैं इसको पूरा कनेक्ट कर दूं तो ये पूरा जो मेरे को यहाँ पर कनेक्शन दिखाई देगा, this is basically a U-tube manometer. And this manometer will give me the pressure difference. This manometer, this is a U-tube manometer which gives प्रेशर डिफरेंस. क्या देगा ये मुझे प्रेशर डिफरेंस बताएगा दोनों लोकेशंस का, यानी कि P1 माइनस P2 की वैल्यू ये मुझे दे देगा. तो इन दोनों के बीच में जो हाइट का डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज h. कितने का डिफरेंस है बेटा, h का डिफरेंस है. तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर अगर मैं जो भी इस यूट्यूब में जो भी लिक्विड फुल होगा उसकी डेंसिटी अगर मैं रो m मान लूँ और यहाँ पर जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी रो मानूँ, तो इट विल बी रो m इंटू जी इंटू एच. यही हमारा फॉर्मूला होता था रो जी एच. तो रो की जगह पर हम लोगों को रो एम लिखना पड़ेगा, और रो एम लिखने की वजह से P1 माइनस P2 की वैल्यू जो मुझे मिलेगी, दिस विल बी रो एम जी एच. अब यहाँ पर इस वाले क्रॉस सेक्शन की और इस वाले क्रॉस सेक्शन की, दोनों ही क्रॉस सेक्शन की हाइट सेम है, तो एच वाला एक्सप्रेशन तो हमारा खत्म हो जाएगा. मतलब ये और ये वाली टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी बर्नौलीज इक्वेशन में से, क्योंकि हाइट जो है वो सेम है. तो P1 माइनस P2 का एक्सप्रेशन मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा. तो P1 माइनस P2 की वैल्यू मुझे पता है वो किसके बराबर है, रो एम जी एच के बराबर है. और यहाँ से जो मुझे ये एक्सप्रेशन मिला सॉल्व होकर के, वो ये एक्सप्रेशन मिला. जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो मैंने यहाँ पर A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 अप्लाई किया, तो यहाँ से मुझे V1 की वैल्यू मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ. आप चाहें तो यहाँ से V2 की वैल्यू भी आप आइडेंटिफाई कर सकते थे. तो यहाँ से P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो एम जी इंटू एच. दिस इज द फॉर्मूला, दैट इज द प्रेशर डिफरेंस. तो ये वाला जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आया, जो आपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इस एक्सप्रेशन में अप्लाई की, मतलब आपने क्या काम किया, आपने V2 की जगह पर आपने वैल्यू लिख दी A1 अपॉन A2 इंटू V1. ये वैल्यू जब आपने यहाँ पर प्लेस की तो आपको ये एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा. तो यहाँ से मुझे V1 पता चल गया कि V1 क्या होगा. अब यही जो V1 आया है, मुझे अगर रेट ऑफ फ्लो निकालना है, तो रेट ऑफ फ्लो बेसिकली होता क्या था अपना, वॉल्यूम अपॉन टाइम. तो अगर वॉल्यूम को मैं A इंटू एल अपॉन टी लिख दूँ टाइम, तो ये कितना आ जाएगा AV. यानी कि जो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 है, दिस इज बेसिकली द रेट ऑफ फ्लो रिमेन्स सेम. क्या चीज़ सेम रहेगी आपकी, रेट ऑफ फ्लो रिमेन्स कांस्टेंट. यही हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का एक्सप्रेशन. तो जब आपको V1 मिल गया, तो इसी V1 को जब आप A1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि A1 इंटू V1 का जो भी एक्सप्रेशन आया, दैट इज 2H रो एम जी
अपॉन रो अंडर रूट ऑफ दिस इज a1 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर माइनस ऑफ 1, ये जो एक्सप्रेशन आया दिस इज योर रेट ऑफ फ्लो, जो कि आपका वेंचुरी मीटर काम करता है क्या आइडेंटिफाई करने के लिए, रेट ऑफ फ्लो आइडेंटिफाई करने के लिए. So this is the second application of Bernoulli's principle on which your venturimeter works. Next is your Magnus effect. How the ball spins. भाई जब बॉल स्पिन होती है तो वो अपने पाथ से क्या हो जाती है बेटा, डिविएट हो जाती है. जब आप बॉल को स्पिन कराते हैं तो आप बेसिकली आप उसको रोटेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर्स. तो जब भी आप इस बॉल को रोटेशन प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये जो वेलोसिटी होगी ऊपर वाले सरफेस पर, जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो जाती है और नीचे वाले सरफेस पर आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एयर का फ्लो तो आपका इसी डायरेक्शन में है और ये वेलोसिटी का फ्लो आपका इस डायरेक्शन में है. यहाँ पर ये दोनों ही वेलोसिटी, एयर की वेलोसिटी और ये दोनों ही वेलोसिटीज आपको क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है. तो जहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होती है वहाँ प्रेशर कम होता है, डिक्रीज होता है. तो उसकी वजह से ये क्या होगा, ये अपने पाथ से डिविएट हो जाएगी. मतलब जो ये स्ट्रेट जानी चाहिए थी ये स्ट्रेट ना जा करके ये अपने पाथ से क्या हो जाएगी, डिविएट हो जाती है. दैट इज मैग्नस इफेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट इज योर लिफ्ट ऑफ एन एयरप्लेन. जब आप एयरप्लेन को बिल्कुल फ्रंट से देखते हो, मतलब तो फ्रंट से देखते टाइम पर आपके जो एरोप्लेन्स के विंग्स होते हैं वो विंग्स कुछ इस शेप में हुआ करते हैं, आगे से थोड़े से ब्रॉड और पीछे की तरफ स्लीक होते हैं. ठीक, ये मैं फ्रंट व्यू देख रहा हूँ उसका, आगे से देखने पर मुझे इस तरीके के दिखाई देते हैं. तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो भी आपकी एयर फ्लो होते हुए जाएगी, यहाँ पर इसको एक स्लैंट मिल गया, तो स्लैंट मिल गया तो यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, और वेलोसिटी अगर यहाँ पर इंक्रीज हो गई, यहाँ पर तो ये फ्लैट सरफेस है तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या रहेगी, आपकी वेलोसिटी कम रहेगी, डिक्रीज रहेगी. तो सिंपल सी बात, यहाँ पर वेलोसिटी कम और यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा. जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा वहाँ प्रेशर कम, यानी कि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा. तो इसलिए ये एयरप्लेन क्या हो जाता है आपका, लिफ्ट हो जाता है. तो लिफ्ट अकर्स व्हेन द मूविंग फ्लो ऑफ एयर इज टर्न बाय अ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स. The flow is turned in one direction and the lift is generated in the opposite direction according to third law of action and reaction. For an aircraft wing, both the upper and lower surface contribute to the flow of turning or the downwash. So this is lift of an aeroplane. तो ये जो लिफ्ट ऑफ एन एयरप्लेन की बात है या फिर ये मैग्नस इफेक्ट है, यहाँ पर आपको यही चीज़ देखनी है कि किस सरफेस की तरफ आपकी वेलोसिटी ज़्यादा है. जिस भी सरफेस की तरफ वेलोसिटी ज़्यादा होती है वहाँ प्रेशर कम ऑब्जर्व होता है. जहाँ पर प्रेशर कम होगा, ऑब्वियसली बात है, कोई भी बॉडी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाने की कोशिश करती है. तो यहाँ पर नीचे की तरफ प्रेशर जो है वो ज़्यादा है. ऊपर जब एयर चल रही होती है, जब वो आगे की तरफ मूव कर रहा होगा, आपका प्लेन मूव कर रहा होगा, इन दैट केस आपकी जो एयर की वेलोसिटी होगी वो ऊपर की डायरेक्शन में बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू दी स्लैंट की वजह से, जो भी आपकी स्लोप है विंग्स के ऊपर. तो उसी की वजह से यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और इस प्रेशर की डिक्रीज होने की वजह से आपका एयरप्लेन क्या हो जाता है, लिफ्ट हो जाता है. दिस इज लिफ्ट ऑफ एन एयरप्लेन. नेक्स्ट इज ब्लोइंग ऑफ रूफ. जो आपने देखा होगा स्टॉर्म वगैरह बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है तो हवा की जो हवा होती है वो बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही होती है. तो जहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा वहाँ प्रेशर कम, और घर के अंदर जो एयर होती है वो एयर की वेलोसिटी कम होती है. कम होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर, बाहर क्या होगा, लो प्रेशर. तो उसकी वजह से जो ये छत होती है, ये छत आपकी ऊपर की तरफ मूव कर जाती है. तो इसी की वजह से जो आपके रूफ्स वगैरह होती हैं जो सिर्फ नट और स्क्रूज से जो कनेक्टेड होती हैं, वो रूफ क्या होती हैं आपकी घर को छोड़ करके घर से ब्लो ऑफ हो जाती है, मतलब वहाँ से उड़ जाती है. तो दिस इज कॉल्ड ब्लोइंग ऑफ रूफ्स ऑफ हाउसेज इन स्टॉर्म. तो इन तीनों ही जगह पर बर्नौली प्रिंसिपल ने हमें यही बात बताई है कि जहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर प्रेशर कम देखने को मिलता है. तो जब स्टॉर्म चलेगी, स्टॉर्म चलने की वजह से आपको बाहर की हवा बहुत ज़्यादा तेज़ होगी, और बाहर की हवा जब बहुत ज़्यादा तेज़ होगी तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर वेलोसिटी अगर आपने ज़्यादा कंसीडर की है तो प्रेशर आपका कम हो गया. यहाँ पर जो भी आपकी वेलोसिटी है, प्रेशर वेलोसिटी है, घर के अंदर जो हवा होती है उसकी वेलोसिटी कम होती है, तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा. तो जो भी ये रूफ़ है, ये रूफ़ क्या करेगी, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाने की कोशिश करेगी, इसलिए ये रूफ़ क्या हो जाती है आपकी, ब्लो ऑफ हो जाती है. सो आई होप ये सारी की सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी बेटा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.